मेरे साथ साथ करना है। ओके, विल स्टार्ट विथ मुस्लिम माइनॉरिटी। चलो, मैंने सब रेडी करके रखा है, ठीक है। ओके, कहीं ठीक से आ जाए, और सबसे बुरा नहीं करो। Muslims are 14.2% of India's population and are considered to be a marginalized community in India. जो small in number, they are called minority. दूसरे लोगों के हिसाब से वो माइनर है। In India today, मैम because पेज नंबर 88। हाँ, ओके। in comparison to other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. The data in the three tables below, derived from different sources, indicate the situation of the Muslim community. यहाँ बोल रहा है ना, कैसे रहते हैं, कच्चा हाउस में रहते हैं। हिंदूज लिव इन कच्चा हाउसेस, हम 63.6 मुस्लिम्स लिव इन कच्चा हाउस, 55.2 हिंदूज, 30% मुस्लिम्स हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, 43 आज की तारीख में तो गांव के लोगों को भी एक्सेस है इलेक्ट्रिसिटी। 19.4 5 क्वार्टर मुस्लिम्स, 25.3। हर चीज में हिंदू लोगों का ज्यादा है, मुसलमान का कम है। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते, चाहते हैं, पर उनके घर जिस एरिया में होगा, हो सकता है वहाँ सप्लाई करना इट इज नॉट पॉसिबल। They have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. इसीलिए डाटा लिखा है। The data in the three tables below derived from different sources. ये सरकारी डाटा है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, इसका गवर्नमेंट सर्वे करके गवर्नमेंट का डाटा है। And what do you think these tables tell us about the socio-economic status of the Muslim community? We will not discuss so much about it. Recognizing the Muslims in India who are lagging behind in terms of various development indicators, the government set up a high-level committee in 2005, chaired by Justice Rajinder Sachar. The committee examined the social, economic, and educational status of the Muslim community in India. The report discusses in detail the marginalization of this community. It suggests that on a range of social, economic, and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes. For example, according to the report, स्ट्रक्चर कमेटी, तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा कैसे हो तुम तो अभी पैदा हुए, बहुत पुराना है। शेड्यूल कास्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट of the committee, the average years of the schooling of Muslim children between age to 7 to 16 is much lower than that of other sources. वो कह रहे हैं स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, मुस्लिम बच्चे बड़ा कम जाते हैं। कितने उम्र है बोला है? 7 to 16, 16 साल के बाद खास करके गर्ल्स, कुछ बच्चे आजकल पढ़ने लगे। पूरा हमारे स्कूल में बहुत मुस्लिम, अलीना पठान और बच्चे, अभी तो कोई थी, क्या नाम है, सफिया पढ़ रही है आपके क्लास में, सफिया 9th में, नॉट, बट जहाँ पे उन्होंने सर्वे किया उसे, इट इज ए जनरल सर्वे। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मुस्लिम्स has other dimensions as well. Like other minorities, Muslim customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. Some, not all. Some of them they do. Not every Muslim child do this. Muslims may wear a burqa, sport a long beard, लंबी दाढ़ी लगाते हैं, wear a fez, and these becomes ways to identify all Muslims.
Because of this, they tend to be identified differently. And some people think they are not like the rest of us. Open this becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. Do you remember reading in your class 7th book about how the Ansaris were finding it difficult to rent a house? आपको याद है अंसारीज लोगों को फिर वो जो ब्रोकर था वो बोल रहा you have to change your caste. आप अपना नाम चेंज कर दो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को बोलते तो मिस्टर कुमार रख दो वो बोले व्हाई शुड आई डू दैट it will take time I'll get a home on rent. The social marginalization of Muslims in some instances has led to them migrating from places where they have lived, often leading to the ghettoization. Ghettoization मतलब अलग करना राजनीति में बड़ा यूज होता है of the community. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence. कुछ कुछ काम जो स्टीरियोटाइप अपन करते हैं ना उसमें क्या है आपस में झगड़ा होता है शुरू से इसे चल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये देखो इसमें बुक सुंदर के इंफॉर्मेशन देता है आई लिव इन ए मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया some days back during Ramzan, there was some disturbance that started taking a communal outlook. My brother and I had gone for an iftar party in the neighborhood and were dressed in traditional clothes, that is Sarwani and Salwar kameez respectively. On returning home, my brother and I were asked to change our clothes to jeans and t-shirt. Now, when everything is fine, I wonder what was the reason that we were asked to change our clothes, and why I did not find it odd. Were our clothes giving away our identity, and is that identity linked to all kinds of fears and discrimination? कुछ होगा मैं बताऊं एक चीज मैं जानती हूँ एक थे रामकृष्ण मदान साहब वो भी नहीं इज द फ्रीडम फाइटर ही वाज अ फ्रीडम फाइटर इज नो मोर उन्होंने एक बार जब मैं एमए एग्जाम दे रही थी वो आके फ्रीडम की कहानी सुनाते थे मुझे उनका एक्सपीरियंस ही वाज फ्रॉम लाहौर तो ही पंजाब नेशनल बैंक का वो मैनेजर रहे तो उनको सब मैनेजर साहब बोलते हैं वो द डिवोटी ऑफ सिक्योरिटी तो बोलते बोलते ऐसे बातें करते फिर एक दिन बोलने लगे उनकी जो एक बहू है वो डॉक्टर है और दुबई में है दुबई में हाँ दुबई में तो रमजान का महीना चल रहा था सी टुक आउट हर बोतल टू ड्रिंक वाटर ड्राइवर ने चिल्ली आउट ड्राइवर बोला मैडम आप क्या कर रहे हैं शी स्टेप्ड आउट ऑफ द कार एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर बोले क्या मैं पानी पी रही हूँ नो मैडम आप फांसी हो जाएगी आपको जेल हो जाएगा पानी पीने से बोलते नहीं बिकॉज इट इज अ मुस्लिम कंट्री और इसमें रमजान के महीने में पब्लिकली आप कुछ खा पी नहीं सकते that is an instance they are so particular about their things that makes a distinction between us and them so such things are there you cannot celebrate your anything publicly आप जो कुछ करेंगे चुपचाप करो I do not know why people go to Dubai and settle there ये तो किसी मुस्लिम ने एनी ए फारूकी उन्होंने लिखा है इज ऑल्सो मुस्लिम The above essay has been written by a child around your age. What do you think she is trying to convey? तो क्या बता रही है? लड़की है लिखी. In the above section of this chapter, we saw how in this case of the Muslim community there is a link between economic and social marginalization. Earlier in this chapter, you read about the situation of Adivasi. In your class 7th book, you read about the equal status of एक डिफरेंट लुक हो जाता है हमारे दिमाग में डिफरेंट आइडिया आ जाता है एक मिनट बेटा ज्यादा बच्चे और मैं थोड़ा सा इसको सेव कर गुड नाउ वी हैव अ डिफरेंट माइंड सेटअप पीपल look at them in a different mindset the experience of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomenon requiring a variety of strategies.
measures and safeguards to redress this situation. All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to realize these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. ना conclusion. सब समान है. ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाना, वो भी तो हिंदू था, चाहे दलित कम्युनिटी का था पर हिंदू तो था. उसको झाड़ू लगवाना, उसको नीचा दिखाना, देखना, नजरिया में देखना कि ही इज लो. This is all this, In this chapter, we have tried to understand what it means to be a marginalized community. हमने ये पढ़ के हमने किसी के तौहीन नहीं करी. हमने बोला marginalized कैसे, किसकी वजह से. अगर आप मारपीट करते हैं क्लास में, मैं आपको बताती हूँ, if you are not behaving properly like other children, you will be marginalized. Nobody will like to talk to you. No, you are not my friend because you have been fighting and talking aggressively to others. That is wrong. Do you agree with me? अगर गाली Yes, and not ma'am. behaving very others, nobody would like you. Okay. Yes, There ma'am. are different reasons for each of these communities being marginalized. Each experiences marginalization in different ways. We have also seen that marginalization is linked to experiencing disadvantage, prejudice, and powerlessness. देखो, marginalization is linked with the experiencing disadvantage, prejudice. Prejudice means fixing people into one image. Aniket like this and this. अरे वो अनिकेत वो तो ऐसा ही है. You have fixed it in your mind. You change. Nobody is fixed image. हम लोग से कभी कभी गुस्सा आता है हमको, हमेशा बड़ी गुस्सा आता है. Sometimes we fight, but then we fix people into one image, and that's how the problem starts. In India, there are several more marginalized communities like Dalits, of whom you will read more in the next chapter. Marginalization results in having a low social status and not having equal access to education and other things. See, the lives of marginalized people can and do change. तुम जिसको बार बार अपमान करो वो रिवोल्ट कर देगा. भारत में 200 साल ब्रिटिश रहा, भारत में इतनी एक्सप्लॉइटेशन करा, इतना आर्बिट्रेरीनेस चलाया. Finally, people revolted against them. That's why nationalism was born in India. And finally, they have to leave. Very big example before us. In India, there are several more marginalized communities like Dalits, of whom you will read more in the next chapter. Marginalization results in having a low social status and not having equal access to education and other resources. Yet, the lives of marginalized people can and do change. Thus, no one is marginalized all the time in exactly the same way. If we go back to the two examples, marginalization we have discussed, we'll see that each of these groups has a long history of struggle and resistance. Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development, and other opportunities. In the next chapter, we read about it. See, अभी अखिल मुझे बोल रहा था ना, अखिल तो मुझे पूछ रहे थे ना कौन सा बुक में पढ़ूं. See, our library principal sir has purchased so many books. You must, when the school is open, you can come. These are like Amar Chitra Katha and all. They are very good. I have read about the Ramayana. It is written in a very different attitude, but from the children point of view, it is good. मुझे तो वैसे पूरी रामायण रटी हुई है. रटना का बात नहीं है. You have to understand why did it happen like this. Yes, ma'am. Ramayana is not the story of Ramayana only. It has economics, it has politics, it has everything. Skills. रामायण को पढ़ो, धार्मिक पुस्तक से पढ़ो. फिर दूसरा रटने से क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. लॉर्ड राम क्यों बोलते? देखो,
मैं एक बात कह रही हूँ, ये वाली चैप्टर हम छोड़ते हैं। मैम मुझे पता है मैम, उनको मैम लॉर्ड राम क्यों बोलते क्यों है? वो ठीक है, भगवान ने अवतार लेके पैदा हुए थे, वो ठीक है, पर हमको पढ़ना भी चाहिए। देखो ये जो है ना, मैं सोच रही थी इसमें कुछ कुछ हटाना चाहिए। मैं इसके पहले ना कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का पहले एक और चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर, उसको पढ़ा देती हूँ। हिस्ट्री में हमारे बहुत कुछ बाकी है कि नहीं है? बहुत बड़ा चैप्टर है ये। आई वांट टू डिलीट दिस चैप्टर। पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा। पहले मैं पब्लिक फैसिलिटीज पढ़ाऊंगी। आ जाइए चैप्टर 9 में। तो अभी हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। अभी हिस्ट्री का एक बुक पूरा हमारा बाकी है। हिस्ट्री में अभी बहुत सारे चैप्टर कहाँ तक पढ़े हम? चैप्टर 5 और 1। कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन नहीं पढ़ वो रहे। नहीं पढ़ा रही हूँ। I'm not teaching now. Right now I'm not teaching. What is marginalization you have studied? I will teach you some portion of that. ठीक है बेटा? तो पब्लिक फैसिलिटीज पहले पढ़ा दो। इस द लास्ट चैप्टर, लास्ट की एक और 10 है। कोई कारण है इसके लिए मैं तुमको नहीं पढ़ा रही हूँ। आई कैन नॉट अभी रिव्यू, तो आपको रिव्यू नहीं कर सकती। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? वी हैव 10। लॉ एंड सोशल जस्टिस पढ़ना जरूरी है। लास्ट 2 चैप्टर्स थोड़ा तनुश्री मैडम के साथ डिस्कशन करके मेरे को बताओ, ठीक है? एक दिन आज की तो बात है। पब्लिक फैसिलिटीज, व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटीज? आपने पीआईएल पढ़ा ना? पब्लिक क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2005। पीआईएल हमने भी पढ़ा कि नहीं लॉ के बारे में? जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, एक बार मैं बताती हूँ सही बात जो हुआ हमारे स्कूल। ये जो आप जाते हैं राघवगढ़ जाते हो, गुना जाते हो, इधर से पुलिया के नीचे जाते हो, एक पुलिया उसके नीचे से रास्ता बना है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Akhil is not listening. Akhil, are you listening? यस मैम। क्या ये? What is this? I am asking. Sometimes you go to Raghavar, sometimes you go to Guna. You have to use that underneath road. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, when it was in the beginning, when it was done, the road जो बनाया गया to block this cross, क्या है उसको बोलते हैं? रेलवे क्रॉसिंग। उसमें क्या है, कुछ बच्चों ने तो अभिषेक भार्गव वगैरह 7th क्लास में थे, ये इसका भाई सर्वज्ञ भार्गव का भाई। Then one day they said, they tell me, आपने बताया था पहले। नहीं बताया तो था, फिर भी that is PIL। याद आ रहा है? Should I tell you or tell you? देखो, तो इन बच्चों ने मुझे सब बात बताते बच्चे, मैम ऐसा हो रहा है कि हम क्लास में आने में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, हाउ वी शुड क्रॉस। तो मैंने बोला क्या कर सकते हैं? फिर मैं तो 8th क्लास में PIL पढ़ा रही, बोला इसी से पास। फिर मैंने गुप्ता सर से बात करी, फिर तो सर के पास नहीं गई थी मैं। फिर बात करा, बात करने के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, फिर आई ड्राफ्टेड ए लेटर टू सेंड इट टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर मेरे पास भी सर्वोदय का दीदी पढ़ती थी शिवांगी, उसके फादर लॉयर है, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। आई टॉक टू देम आल्सो इन द पीटीए। फिर सभी 7 से लेके 10th जितने बच्चे आते हैं सबकी सिग्नेचर है। फिर हमने उसको पोस्ट किया सुप्रीम कोर्ट। दूसरे दिन यहाँ नेता लोग चक्का जाम कर दिया, ट्रेन को जाने नहीं दिया। देयर आर अदर पीपल, हिमांशी मिश्रा जैसा, वो लोग अपने लेवल में शिवराज सिंह चौहान को करा। देयर आर 2 लेवल, वो 2 लेवल तक बात करिए, उसके बाद किसी ने बात नहीं की। फिर रेलवे इज नॉट एन अफेयर ऑफ स्टेट, इट इज एन अफेयर ऑफ सेंटर। जो भी वो रास्ता बना भी, बच्चे आए भी, बहुत डरे हुए थे। मैंने एग्जैक्टली इन द सेम लैंग्वेज आई रोट द लेटर, देन वी पोस्टेड। पहुंचा, कुछ तो काम हुआ, उसके बाद ही काम हुआ। Why can't we take the credit that हमारी लेटर भेजने से? That was in the public interest. Public means हर कोई बंदे का इंटरेस्ट में था।
तब तो बहुत पानी था उसके अंदर, ऐसे बरसात की मौसम में। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे, दैट वर्क। जोखिम तो कुछ नहीं था, लिख के लेटर भेजना था। देव सर बोल रहे थे एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पोस्टर में लिख दिया था, उसका एक्शन नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन एक्शन, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज दोज मेंट फॉर एवरीबॉडी। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, these are public facilities. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Water and people of Chennai. पानी सप्लाई नहीं। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you tell me the page number, ma'am? By mistake, ma'am, मैंने मीटिंग छोड़ दी थी। Why? 108. 108. Okay, thank you, ma'am. मैम चैप्टर 7 में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है क्या? अभी आप पढ़ो जितना बोल रहे हैं। ओके मैम। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को देना होगा मैं दे दूंगी। अनावश्यक तुमको परेशानी में डालने का क्या मतलब? समझ तो सही पब्लिक फैसिलिटी जो बोल रहे, जहाँ पे सारे लोगों को अलाउड है, होटल, रेस्टोरेंट, ये तो क्या सरकार ने इधर पब्लिक फैसिलिटी मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, ये सब। Senior government officials like Mr. Ram Gopal live in Anna Nagar, Chennai. This area looks lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. उसमें चेन्नई में ना पानी का बड़ा कठिन समस्या। मैं एक रात किसी के घर में ठहरी थी, वाटर सप्लाई का बहुत पानी जो वहाँ कुएं में मिलता ना, एकदम खारा, एकदम बहुत वेरी ब्रैकिश, बहुत पानी की। इसीलिए चेन्नई इज द फर्स्ट स्टेट टू डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। छत में, सड़क में सब पानी को हार्वेस्ट करते हैं लोग चेन्नई। मिड डे मील दे हैव स्टार्टेड, इट वाज द तमिलनाडु स्टेट स्टार्टेड द इंट्रोड्यूस द मिड डे मील scheme. This area looks lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. Bungalows here have tap water for major part of the day. On days when the water supply is inadequate, देखो ऐसे ही रहता है उनका नल के पास, देखो कैसा रह रहा है फटका। I have seen in Hyderabad, उसको सिकंदराबाद बोलते हैं, वो जहाँ पे मैं जा रही थी ट्रेन में, तमिलनाडु जाने के लिए सिकंदराबाद होके जाना पड़ता है। On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to a senior official whom he knows in the municipal water board, and a water tanker is easily arranged for his house. एक टैंक पूरा अपने घर में, राइट, बिहेव प्रॉपर्ली, कहीं इतना यानी नहीं करना, काल से स्कूल ड्रेस में बैठना, ओके ओके चाहिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डू नॉट बिहेव लाइक दिस, ऐसे यानी कर रहे, ऐसे घबराई ले रहे हैं। Like most areas of the city, Subramanian's apartments in Mylapore suffers from water shortage. This area gets municipal water once in 2 days. एक बार पानी, 2 दिन में एक ही बार पानी मिलता है। How difficult the life is. तुम लोग कितना पानी मिलता है राघवगढ़ में? सही Yes, ma'am. कितने बार राघवगढ़ में तुम कितने दिन में रोज पानी मिलता है? यस मैम। एक बार ही मिलता है मैम, एक बार ही। Once in a day? Yes. मैम। तो हो जाता है तुम्हें कि तुम्हारा कि तुम लोगों ने वो लगा रखा है ट्यूबवेल? मैम ट्यूबवेल ही है मैम हमारे यहाँ तो, उसमें से पानी निकालते तुम लोग? यस मैम। A private borewell इसको बोलते हैं, meets some of the residents' water needs. Borewell water is however brackish, बहुत गंदा पानी है जमीन के नीचे, चेन्नई में बहुत खराब पानी है, brackish, so the residents use it in their toilets and for washing. For other uses, water is purchased from tankers. Subramanian spends up to 500 to 600 rupees per month
on buying water from the tankers. For drinking water, residents have installed water purification system in their homes because those waters you cannot use. They are not edible, drinkable नहीं है. मेरे सामने कितना पानी पी रहा है, मेरा पानी खत्म है, ओए पानी पी रहा है. हम कैसा? Siva lives on rent on the first floor of a house in Maddipakkam and gets water once in 4 days. Storage of water is one major reason why Siva can't bring his family to Chennai for drinking. Siva buys bottled water. Padma works as a domestic help in Saidapet. ऐसा नाम है, साया के एरिया का नाम जैसे हमारा बोलते हैं फलानापुर फलानापुर. राघवगढ़ में क्या क्या एरिया है बताना जरा. सही. मैम धीरपुर है, धीरपुर वहाँ पे. आप कौन सा एरिया में रहते हैं? मैम मैं तो सदर बाजार में रहता हूँ. सदर बाजार. ऐसे सदर बाजार है, फिर चक्की वाला गली है, ऐसा कुछ कुछ है, हनुमान मंदिर है, ऐसा कुछ कुछ एरिया. ऐसे इनका भी साइडापेट है. पेट मतलब वही एरिया अलग अलग है. Storage shortage of water is one major reason why Shiva can't bring his family to Chennai. फैमिली ले आएगा तो पानी नहीं है, बहुत मुश्किल है. अकेला बेचारा बिना नहाए भी काम चला रहा है. फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बॉटल वाटर. 10-15 रुपया, ये 6 रुपया होता था एक बॉटल रेलवे में. अभी रेलवे में 10-15 रुपया. ये जो आपका मिनरल वाटर मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वाटर है, नाम अलग अलग है. Padma works in a domestic help as a domestic help in Saidapet and lives in the nearby slum. She pays a rent of ₹650 for the apartment. जो झुग्गी में रहती है उसका 600 रुपया, वो 650 रुपये किराया भरती हुई. इज नाइदर ए बाथरूम नॉर ए टैप कनेक्शन. और 30 झुग्गी में कहाँ से आएगा बाथरूम टॉयलेट? और 30 such apartments there is a common tap at one corner. एक टैप है कोने में, ये जो इतने सारे लोग रह रहे हैं उनके लिए. In which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily. 20 मिनट के लिए 2 बार आता है डेली. यहाँ गेल में 3-3 बार बढ़िया पानी आता है. लोग दरवाजे सामने पहनते, गाड़ी धोते, क्या नहीं करते कि बहुत वेस्ट करते पानी. और एक बार धो लिया, दोपहर को दो, शाम को दो, सुबह दो. A family gets to fill a maximum of 3 buckets within this time. क्योंकि लंबा लाइन रहता है, सब लोगों को लेना है. The same water is used for washing and drinking. In summer, the flow becomes a trickle, टप 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 टप, पतला हो जाता है. So that one family gets water only at the cost of another. People have to wait long hours. यहाँ पे टिक मारे क्वेश्चन नंबर 5. Why does water flow in a trickle in summer in most places in India? टिक मारे क्वेश्चन करना है तुमको. Water is part of the fundamental right to life. It is fundamental. पानी के बिना कोई रह सकता है? नहीं रह सकता. पानी के बिना गांव में बहुत अच्छा है, तालाब रहता है, कुआं रहता है, सब लोग जाके नहाते हैं उतना आराम से बढ़िया. नॉट ऑल, कभी तालाब भी सूख जाता है, दूर जाना पड़ता है. वाटर इज एसेंशियल फॉर, वहाँ ये कनेक्शन वाला नहीं, कुआं है. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ. नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स. About safe drinking water, but safe drinking water can prevent many water-related diseases. India has one of the largest number of cases of diseases such as diarrhea, dysentery, cholera. Over 1,600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of water-related diseases. These deaths can be prevented if people have access to safe drinking water. The Constitution of India
recognizes the right to water. देखो आ गया कैसे, आर्टिकल 21 इसमें भी आ गया, राइट टू लाइफ था ना आर्टिकल 21। हाँ, वाटर एज बीइंग Yes, sir. right to life Right to life. under Article 21. The other day we have discussed about the right to life. Yes, ma'am. Yes. This means that it is the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfill his or her daily needs at a price that he or she can afford. In other words, there should be universal access to water. सबको पानी तो मिलना चाहिए, पानी तो मिलना चाहिए भाई। मेरे घर में एक दिन पानी नहीं है, सब टॉयलेट बनाने वाले पूरा खत्म कर दिया, और उसी दिन गेल में सप्लाई नहीं था दोपहर। मुझे आ रहा है टॉयलेट, कहाँ जाऊँ, कहाँ कैसे करूँ साहब, बड़ा मुश्किल हालत हो गया था। एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ा मुझे। तुम्हारे क्लास लेने के बाद ही मुझे टॉयलेट आया, ऐसे दोपहर। The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of the right to life. Article 21 ये हो गया। There have been several court cases in which both the High Court and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. More recently, in 2007, the Andhra Pradesh High Court restarted this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mehboob Nagar district on the contamination of drinking water. मैंने एक रोल प्ले करवाई थी, ठाकुर का कुआं, उसको मैंने चेंज करके लिखा एक लोटा पानी। क्या गजब की प्ले था, बच्चों ने करा था। वैसे ये तो ठाकुर का कुआं, ठाकुर सुवेल के नाम पे बोलते हैं, ये उनका 9th क्लास की बुक में था, टेक्स्ट बुक में था इंग्लिश में, ठाकुर सुवेल। उसको कन्वर्ट करके मैंने एक लोटा पानी करा। एक लोटा पानी के लिए वो भैंस मार के, मरा हुआ भैंस उस पानी में पड़ा था, वो आदमी प्यासे में वो पानी पी गया। तुम जानते हो टीवी में आजकल बढ़िया सीरियल आता है कथा सागर, वर्ल्ड का बेस्ट राइटर का रिटन जो बुक है। एक और भी मैंने सोचा मैं किसी को आइडिया देने वाली हूँ इस साल। एक है वो है द ओवरकोट, उसको हिंदी रूपांतर टीवी में आ रहा, रोज आ रहा, सुबह रोज आ रहा है कथा सागर। कहाँ देख पाती हूँ, एक देखा था तो इसलिए मुझे याद आ गया। घर में थे पर अभी तो स्कूल आने के लिए ये तैयारी करो। ये बेस्ट राइटर का ये ड्रामाटाइज करके और उसने टीवी में दिखा रहे, इसका नाम पता था। बहुत अच्छा हुआ, थोड़ी दिमाग में सेट हो गया। ओके, contaminating groundwater, stream water. The villagers' complaint was that a textile company was discharging poisonous chemicals into a stream near his village, contaminating groundwater. अगर तुम गंदा पानी छोड़ोगे, नाली छोड़ोगे। एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी दिल्ली, पहुंचे हम कहा मथुरा, और एक गाड़ी रुक गई किसी कारण, वहां पास में लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा नाला है गंदा, उसके घुटने तक डूब के जो भी खड़े हो गए, खटाखट खचाखच पटकाए जा रहे कपड़े, धो रहा है वहां, काला पानी एकदम घुटने तक खड़ा है, उस नाली में कपड़ा धो रहा है, वही सुखा रहा है, वही इंसान टॉयलेट किया, गाय का गोबर सब। मैं देखती रह गई कि लोग क्या ईमान बेचते हैं हम ना। जमुना की पानी भी कंटामिनेटेड है, क्योंकि दिल्ली का सब जितना है ना मलमूत्र सब उसी में बह रहा है, क्योंकि जमुना है, नदी है, तो नाली में धो रहा है। मैंने खुद देखा है। इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सब पानी को खराब करा है, गंदा पानी जो फैक्ट्री से फेंक रहा है बाहर।
The Judges District directed the Mahbubnagar district collector to supply 25 liters of water to each person in the village. एक व्यक्ति मेहनत करा, उसने उसको लिखा सुप्रीम कोर्ट को, public facility like water. There are other essential facilities that need to be provided for everyone. ये सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है हमसे. It is the responsibility of the government because we pay tax to the government for all this. Other facilities like healthcare and sanitation. Similarly, there are all things like electricity, public transport, schools and colleges that are also necessary. These are known as public facilities. तुम जानते हो दिल्ली शहर में बहुत नाली है और वो सब सड़क के नीचे, बीच बीच में मैन होल बना हुआ है. रास्ता बढ़िया, उसके अंदर ही नाला गटर. एक जगह में जाके खुला गटर, कहीं खुला गटर नहीं है. नेहरू स्टेडियम को जाने के टाइम में रास्ते में उसमें कोई गिरेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा. एक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बहुत ही खतरनाक नाला. वो पहले शाहजहानी ड्रेन नहीं था, वहां लोग नहाते थे पहले. अभी तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे, डोंट नो. तो ठंडा शहर को ठंडा रखने के लिए उसको गंदा करते चले गए अंग्रेजों के टाइम की. जरूरत नहीं है सकता. देखिए क्लासरूम में कैसे बच्चे बैठे, कितना गंदा. इधर फोटो देखो, ऊपर दीवार काला हुआ पड़ा है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पब्लिक. तुम लोग जैसे जूता का चाप मार देते हो दीवार में खेलते खेलते, गलत बात है. स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए, ये तुम्हारा स्कूल है, तो कीप इट क्लियर, क्लीन एंड क्लियर. The important characteristics of a public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. कई जगह में तो ऐसा है कि टैप खोल दिया, पानी बह रहा है. Nobody is taking care. Sometimes in some cities water is wasted like that, and in some places, same city, some parts of that city, no water is available. It is because of the height. Similarly, the supply of electricity to an area can be useful for many people. आजकल तो हमारे शहरों में भी सारा में लाइट जाती है. यस मैम. बट नॉट मच, और जाता रहता है. मैम जाती ही रहती है. और मुझे तो कोई बता रहा था कि आजकल कम जाती है. पता नहीं मैम, हमारे यहाँ तो जाती रहती है. हाउ डू यू मैनेज दैट? मैम इन्वर्टर है ना घर में. अच्छा, ठीक है. पढ़ाई वगैरह, एग्जाम वगैरह. Farmers can run pump sets to irrigate their fields. People can open small workshops that run on electricity. Students will find it easier to study that most people in the village will benefit in some way or the other. Now the government's role. What does the government do? Given the public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people. कोई तो आदमी है जो वाटर बोर्ड का हेड है, कोई वाटर बोर्ड देखता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखता है तो म्यूनसिपालिटी. आप लोग यहाँ बड़ी पॉपुलरली इट इज नोन एज नगर पालिका. ऑल दी चिल्ड्रन इन VPNRKN कहाँ गए सारे? विभाग गया. कहाँ गए सारे बच्चे? ये nobody will switch off their camera and sit at the behind. यार who is R? फिर क्यों गई नहीं होती तुम? कितने कम बच्चे तुम्हारा? 21 बच्चे थे, 18 हो गए. चोरी सीखा, गलत काम करना क्यों, उसको छुपाना क्यों? You are not in the school dress, तभी आप छुपाए जा रहे हैं. What is this caper? Who is cape? Why can't you sit like this? क्यों फिर गई? बहुत गलत बात है. Who is behind you? Who is underneath? K for what? Who is V? PA. अकील. अकील तो जाता रहता है. ये नो, पता नहीं कोई किताब पढ़ता है, दूसरा किताब में उसका पढ़ाई में मन नहीं है.
मुश्किल नहीं है, ये रिलैक्स। अनिकेत कहाँ जा रहे हो बार बार? मैम वो अपने आप ऑफ हो गया था, मतलब मैम कर दिए मैम, बटन दब गया था मैम। मुझे मत बोलो, मैं नहीं जानती, मैं तुम लोग के लिए अरेंज करते के लिए तुम लोग से वैसे गलत काम कर रही। प्रोवाइडिंग दोस्त टू द पीपल, वो अखिल छोड़ गया 10 मिनट पहले, बोला हुए। दिस समवन इज द गवर्नमेंट, सरकार को देखना है सब काम। One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. सरकार का ये न्यायिक काम है, अगर जिम्मेदारी है, अगर सरकार नहीं कर रहा है तो ये सरकार को हटा देंगे, हम वोट नहीं देंगे। लोगों को मिनिमम जो चीज है, वाटर सप्लाई तो नहीं दे रहे, ये क्या बात हुई? One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. सरकार ही क्यों लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? टैक्स क्यों ले रही सरकार हमसे? प्राइवेट कंपनीज भी ऑपरेट करते हैं। 10th क्लास में ये वाटर सप्लाई के बारे में मैं तुमको बताऊंगी। We have seen that private companies operate for profit. उनको तो बहुत ज्यादा टाइम बढ़ा दो। ये जो देखो मिनरल वाटर का बोतल आता है, एक का नाम बताना तो पानी का जो अपन पीते हैं, मिनरल वाटर का बोतल। बिस्लरी। हाँ, बिस्लरी। चलो कोई भी नाम हो, बिस्लरी का बोतल जो बेचता है वो प्रॉफिट के लिए बेचता है, लोगों को सेवा नहीं करता। 1 लीटर पानी 15 रुपया, 20 रुपये, जो भी वॉट एवर इट इज, एक नाम लेके खाली बोल रहे। यू रेड अबाउट दिस, तुम ट्रेन में जा रहे, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, बट यू टू परचेज। राजधानी गाड़ी 1 ही लीटर पानी देता है, मतलब पैसा ले एक बोतल और दे, मारेगा क्या हमको? तो घर से बोतल भर के पानी लेके आती है। नहीं, मैंने बोला यहाँ से दिल्ली तक हम 1 ही लीटर पानी पिए। डॉक्टर कहता है 8 लीटर पानी पिए एक दिन में, और तुम 1 लीटर दे रहे हो, हंसने लगते हैं। मैं बोल देती हूँ। Okay, we see that private companies operate for profit in the market. You read about this in the chapter on the story of the shark in your class 7th book. In most of the public facilities, there is no profit to be had. For example, what profits can accrue to a company for keeping the drains clean, of running an anti-malaria campaign? A private company will probably not be interested in undertaking such a, नहीं लेते। तो उनको तो उसमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो फिर काय को लेंगे वो दोनों सरकार। चलो, और क्लास ओवर हियर। क्लास के बाद भी 100 काम करने पड़ते हैं ये इसके रिलेटेड। हम लोग शांति पाठ करेंगे। बेटा सब लोग, मैं एक बार बोल रही हूँ, सब लोग ऐसा करो, आ जाओ इसे कैमरा खोल के बैठो, ठीक है? चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। तो 1 मिनट जाना नहीं, मैं थोड़ा ये कर लूँ, क्लिक कर लूँ। ओके, सायरा सायरा मैम। शायरा मैम। हर्षली, कौन? तू? नहीं, चल साथ में करते हैं। 3, 2, 1, बाय।